Hi everyone. So here we are continuing our discussion on the legislature part only. But in your book, you'll find this chapter in the executive section when you dealt with the topic of president and governor. I had told you that there were two topics I did not do it then. One was ordinance making power, another is your veto powers. So veto powers हम बिल समझने के बाद करेंगे. Ordinance हम अभी कर रहे हैं because even though it is given in your book because it dealt with the powers of president and governor, it is actually a legislative power, and therefore I'm doing it now because you needed to understand about the sessions of parliament का functioning कैसे होती है, session क्या है, recess क्या होते हैं, etc etc. Now that you understand about it, and before we move ahead with the bills and types of bills, etc., this is something that you would understand. Anyways, before understanding this, firstly we need to understand that what is ordinance. नहीं तो फिर हम इस पूरे प्रोसेस को ही समझेंगे कैसे. हम कैसे समझेंगे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कब लेकर प्रोमलगेट करते हैं, क्या होता है, एवरीथिंग. सो फर्स्ट थिंग हियर इज दैट व्हाट इज ऑर्डिनेंस. नाउ अंडरस्टैंड नॉर्मल सिचुएशन. अगर पार्लियामेंट, व्हेन आई से पार्लियामेंट, प्लीज़ आप स्टेट लेजिस्लेचर भी कंसिडर कर लीजिएगा. व्हेन अ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज इन सेशन, बिल को आराम से पास करवाया जा सकता है. Of course, if there is no majority, that's a different thing, but at least a bill can be proposed and then the entire process will happen and it will become an act if agreed to, right? But let's say the parliament is not in session and then any urgent matter comes forward. ठीक है, urgent matter or any unforeseen situation which was not planned earlier. Then how will this bill become an act? They will have to wait for the session to resume, to be summoned. So in such cases, this ordinance acts as a temporary law. ठीक है, अब ये टेम्पररी लॉ की तरह काम करता है. सो बेसिकली दिस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज़ अ काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म जहाँ पे किसी भी तरीके का अर्जेंट सैंक्शन जो है, बहुत अर्जेंट सैंक्शन जो कि पार्लियामेंट के रिज्यूम होने के लिए वेट नहीं कर सकता है, ठीक है, तो ये लागू किया जाता है. This is the broader idea behind ordinance. Now, because we have seen that the power is with both the president and the governor. So, president के पास ये power constitution से ही मिलता है under article 123. Now, this is one of the most easiest article to remember, 1, 2, 3. So, ordinance आप याद कर लेंगे. Even अगर आप governor की बात करेंगे तो it's article 213. Just reverse 1 and 2. So, it's pretty easier to remember in this case. ठीक है? So, I'll just quickly show you how does it look like. So here it is the legislative powers of the president में power of president to promulgate ordinance during recess of parliament. You know what is recess? When the parliament is not in session. ये सब terms मैंने आपको पहले करा दिए हैं. So there is one article only which deals with it. ठीक है, 123. And similarly for governor, you will see here legislative power of governor, that is 213. Now what is the content of it? I will make you read this in some time. Because for that to happen, we'll have to broadly understand a couple of things about the ordinance, and the best way actually to do is to compare this power of president and governor. क्योंकि इसी में जो इसके postulates हैं, जो basically the points that you have to remember, that is also covered and the difference is also covered. So दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी. And it's a huge list, ये आपकी बुक में ही दी हुई है, तो हम वहीं से इसको समझने की कोशिश करेंगे. We'll try to compare the ordinance making power of president and governor. The only thing for the time being you have to remember is ordinance एक temporary legislation का काम करता है when the parliament is not in session. ठीक है, इतना बस आपको याद रखना है अभी के लिए, and then gradually you will understand what are the other pointers related to it. The first thing is the president can promulgate मतलब उसको लागू कर सकते हैं an ordinance only. Now please focus on the keywords here. Only when both the houses of parliament are not in session or when either of the two houses is not in session. Now understand a very basic thing. For a bill to become an act, it has to be passed. अभी मैंने वो चीज़ें नहीं कराई हैं, but in the coming videos you will do this. This is a very basic information that you need to know. बिल इंट्रोड्यूस चाहे किसी भी हाउस में हो रहा हो, it has to be passed by both the houses. So please understand, for a bill to become an act or a law, it has to be passed by both the houses. So even if one house
इज़ नॉट इन सेशन और बोथ हाउस इज़ नॉट इन सेशन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिल तब भी लॉ नहीं बन पाएगी बिकॉज इट रिक्वायर्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस. सेम गोज फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है. सो when both the houses are not in session or any one house is also not in session, in either case only the ordinance can be promulgated. What does it otherwise infer? That a ordinance cannot be promulgated by the president when both houses, so it will not happen when both houses are in session, because अगर दोनों हाउस सेशन में हो जाएंगे तब तो बिल पास के लिए हमारे पास सारा मैकेनिज्म तैयार होगा, तो ऑर्डिनेंस की क्या ज़रूरत है. ऑर्डिनेंस की ज़रूरत तो तभी पड़नी है जब हम हाउस की नॉर्मल प्रोसेस नहीं कर पाएँ. आई होप यू आर गेटिंग दिस. सो दिस इज़ व्हाट दे आर राइटिंग, दैट द सेकेंड प्रोविजन विच मीन्स ईदर ऑफ द हाउस is implying that an ordinance can also be promulgated only when one house is in session, because a law can be passed by both house and not by one house alone, जो मैंने अभी आपको समझाया. ठीक है. दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट. अब इसी चीज़ को अगर गवर्नर के केस में समझें, द सेम थिंग विल बी देयर, दैट द गवर्नर विल प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस जब या तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं रहेगी, अगर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है तो ओनली द असेंबली विल बी देयर, एंड इफ इट इज़ नॉट इन सेशन देन गवर्नर कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस. बट व्हेन देयर इज़ अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर जहाँ पे असेंबली एंड काउंसिल दोनों है, सो इफ़ बोथ आर नॉट इन सेशन और ईदर ऑफ देम इज़ नॉट इन सेशन, ठीक है, तो भी ये प्रोमलगेट कर सकते हैं. एंड द सेम थिंग इज़ देयर कि दोनों हाउसेस से, अगर बाई कैमरल है तो दोनों हाउसेस से उसको पास होना ज़रूरी है बिल को, तभी वो एक्ट बन सकता है. एंड देयरफॉर ईदर केस में अगर सेशन में कोई एक भी हाउस नहीं है तो भी ये अलाउड है कि आप प्रोमलगेट कर सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज़ एक्चुअली इवन इफ इट रिटन इन द सेंस ऑफ अ डिफरेंस, द ओनली डिफरेंस हियर इज़ कि प्रेसिडेंट के केस में यहाँ पे हम पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की बात कर रहे हैं और यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर के. बाकी द थिंग इज़ सेम हियर. ओके, मूविंग अहेड. So this column is about president, this is about governor. ठीक है. Now the president can promulgate an ordinance only when he is satisfied. Again there is an only condition. So these are, the limitations. Even if the president or the governor is getting this extraordinary power and this legislative power of handling the urgent matter or the unforeseen situation, there are these limitations. The first limitation was that the house need not be in session. ठीक है, वो नहीं होगा, या तो either house या तो both house. Second limitation is only when the president is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action. जब president खुद में satisfy हो जाएंगे कि कुछ ऐसे circumstances हैं जो कि ज़रूरी कर रहे हैं इस चीज़ को कि उनको immediate action लेना है. Same goes for governor. So promulgation will happen only when he is satisfied कि circumstances ऐसे हैं जहाँ पे उनको immediate action लेना है, तभी वो उस केस में कर पाएंगे. ठीक है. दिस इज़ द अनदर थिंग और लिमिटेशन दैट यू विल रिमेंबर. अच्छा, इस केस में क्या है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी. सो इस केस में आपको एक केस याद रखना है. ठीक है, वो था कूपर केस 1970 का, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या, क्योंकि वो इसी पॉइंट से रिलेटेड है, सो आई एम जस्ट मेंशनिंग इट हियर सो दैट यू डू द थ्योरी पार्ट ऑल्सो एंड दिस कंपैरिजन थिंग हियर इटसेल्फ. प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट था ना, तो ये सामने लाया गया था कि क्या ऐसा हो भी सकता है, बिकॉज सी देयर इज़ अ चांस ऑफ मिसयूज़ ना. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट. अभी यहाँ पर क्या है कि ये एक रिस्क हो सकता था. मान लीजिए प्रेसिडेंट जानबूझ के कोई ऐसा सिचुएशन, क्योंकि प्रेसिडेंट को ये जो भी करना है ये करना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से. ठीक है, ये तो आपको पता है. अब मान लीजिए कि मैलाफाइड का चार्ज लग सकता है. मैलाफाइड एज इन बैड इंटेंशंस में की गए काम. तो ये हो सकता है कि क्या पता प्रोरोग, हाउस को प्रोरोग करने का पावर भी प्रेसिडेंट के पास है. तो मान लीजिए प्रेसिडेंट ने एक या दोनों हाउस को प्रोरोग कर दिया, क्योंकि अब हाउस सेशन में नहीं रहेगा तभी आप ऑर्डिनेंस ला सकते हैं. जानबूझ के ऑर्डिनेंस लाने के लिए किसी ऐसे मुद्दे पे जहाँ उनको रिस्क लग रहा हो, मतलब जहाँ मिनिस्टर्स ने उनको बोला हो कि रिस्क हो कि अगर नॉर्मल सेशन रहेगा और उसमें हम वो बिल प्रपोज करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो बिल पास नहीं होगा, उसको मेजॉरिटी नहीं मिलेगी. अब ऑर्डिनेंस के केस में तो आपको मेजॉरिटी चाहिए ही नहीं,
ठीक है, क्योंकि इसमें तो पार्लियामेंट सेशन में ही नहीं है, आपने अपनी तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया, प्रोमलगेट कर दिया. सो दिस कैन बी अ चार्ज एंड देयरफॉर दिस पॉइंट, क्योंकि ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ अभी हम देखेंगे आगे कि सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है. इसीलिए जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो वहाँ पे ये बात आई कि ये जो सेटिस्फैक्शन है इसको क्वेश्चन किया जा सकता है. सो इट कैन बी क्वेश्चनड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ ऑन ग्राउंड्स ऑफ मैलाफाइड. ठीक है, कि बैड इंटेंशंस में उन्होंने जानबूझ के अगर किसी हाउस को प्रोमुलगेट कर दिया हो ताकि हाउस सेशन में ना रहे, प्रोरोग कर दिया हो और हाउस सेशन में ना रहे और उस बीच में फिर वो ऑर्डिनेंस लेके आ जाए, ऐसा हो सकता है. अब क्या प्रॉब्लम हो गई, अब ये देखिए बात कब की है, 1970. उसी के कुछ साल बाद आपको पता है इमरजेंसी की कहानी थी. अब उस केस में द गवर्नमेंट वॉज डेफिनेटली नॉट वांटिंग कि किसी भी तरीके से देयर शुड बी एनी जुडिशरी इंटरफेरेंस इन द मैटर ऑफ एग्जीक्यूटिव. ठीक है, तो क्या हुआ, 38th अमेंडमेंट, 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, दैट वाज 1975. अब इस 38th अमेंडमेंट में सरकार ने क्या बोला, क्योंकि अमेंडमेंट था तो चेंज कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को और बोला कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन है वो फाइनल रहेगा एंड इट इज़ बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. लेकिन व्हेन अनदर गवर्नमेंट केम, जनता पार्टी गवर्नमेंट, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1978 उन्होंने वो पिछला वाला अमेंडमेंट जो 38 अमेंडमेंट था विच हैड मेड द सेटिस्फैक्शन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, उसको खारिज कर दिया. तो बेसिकली वाई आई डिड नॉट राइट इट फॉर द रीज़न दैट यू जस्ट नीड टू नो दिस कि ऐसा भी बीच में हुआ था. अभी जो कंडीशन है वो यही एग्जिस्ट कर रही है दैट इट इज़ विद इन द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, तो प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन जस्टिसिएबल है, वो हम चेक कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैलफाइड. ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. मूविंग ऑन विद द थर्ड पॉइंट, यहाँ पे क्या है, हिज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज को एक्सटेंसिव. नाउ प्लीज नोट द कीवर्ड हियर, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बट इट इज़ को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इट इज़ को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ को एक्सटेंसिव? दिस मीन्स दैट प्रेसिडेंट और गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस only on those subjects on which the parliament or the state legislature can make laws. So we know that we have a legislative division already, state list, union list, concurrent list. तो सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर को एक्सटेंसिव मतलब उनका एक्सटेंट लॉ जो बनाता है पार्लियामेंट और जो ऑर्डिनेंस का एक्सटेंट है वो सेम है. ठीक है, तो ये उन्हीं मुद्दों पर बना सकते हैं जहाँ पर कि पार्लियामेंट के पास अदरवाइज पावर था बनाने का और इन दिस केस स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर था बनाने का. ठीक है, एंड ऑल्सो इस केस में किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट का एब्रिजमेंट भी नहीं होगा, ये भी इनको ध्यान रखना है. ठीक है, फंडामेंटल राइट का एब्रिजमेंट नहीं होगा. अब आपको एक आर्टिकल याद करवाती हूँ. डू यू रिमेंबर दिस आर्टिकल व्हेन वी वाज डूइंग द इनिशियल फ्यू टॉपिक्स और फिर हमने फंडामेंटल राइट्स करना शुरू किया था. आर्टिकल नंबर 13 which says laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights, कि कोई लॉ अगर फंडामेंटल राइट के साथ इनकन्सिस्टेंट है या डेरोगेशन में है तो वो वॉइड हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे लॉ क्या इंक्लूड करता है, सो वी हैड गॉट दिस होल लिस्ट ऑफ व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस टर्म लॉ एज पर आर्टिकल 13 एंड वी सी ऑर्डिनेंस इज वेरी एक्सक्लूसिवली और एक्सप्रेसली मैंशनड है. जैसे बाकी सारी चीज़ें भी हैं तो ऑर्डिनेंस ऑलरेडी कवर्ड है लॉ में. इसका मतलब अगर कोई ऑर्डिनेंस भी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है या फिर इससे इनकन्सिस्टेंट है तो वो ऑर्डिनेंस भी वॉइड हो जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया वेरी क्लियर. ठीक है, सो थर्ड पॉइंट शुड बी क्लियर. मूविंग ऑन विद द फोर्थ पॉइंट, एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय हिम हैज़ द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट and same thing an ordinance issued has the same force and effect as act of state legislature. What does this mean? Same force and effect मतलब अगर नॉर्मल पार्लियामेंट्री एक्ट होता या नॉर्मल स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट होता तो वो जिस तरीके से उसको इन्फोर्स किया जाता या वो जैसा इफ़ेक्टिव होता, उसके जो भी कंपोनेंट होते वो सब ऑर्डिनेंस में भी होंगे. फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी यू नो कि जो अदर लेजिस्लेशंस होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव भी होते हैं. रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है जिसको आप बैक डेट से लागू कर रहे हैं.
ठीक है. सो विच इज़ इन्फोर्स्ड फ्रॉम बैक डेट, कि हमने बता दिया कि विथ इफेक्टिव फ्रॉम, हमने लागू भले आज करा है पर हम बोलेंगे कि दिस विल बी विथ इफेक्टिव फ्रॉम सम प्रीवियस डेट, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट. तो अगर कोई रिट्रोस्पेक्टिव जैसे एक्ट हो सकता है, ऑर्डिनेंस भी पिछले डेट का कुछ लागू कर सकता है. ठीक है. Other certain things are, for example, if because a normal legislation can modify something in the act or can repeal something, ठीक है, वो भी यहाँ पे अलाउड है. अगर कोई टैक्स स्ट्रक्चर है उसको ऑल्टर कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, वो ऑर्डिनेंस भी कर सकती है. सो वॉट एवर नॉर्मली इन द नॉर्मल सिचुएशन, वॉट एवर एन एक्ट कैन डू, नॉर्मल पार्लियामेंट्री एक्ट और स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट, वो यहाँ पर ऑर्डिनेंस भी कर सकती है. बस एक चीज़ नहीं हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकता है. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ऑर्डिनेंस से नहीं कर सकते हैं. उसके अलावा रेस्ट जो नॉर्मल एक्ट का फोर्स एंड इफेक्ट होगा, जिस तरीके से वो इन्फोर्स किया जाएगा, जिस तरीके से वो इफेक्टिव होगा, वो यहाँ पे भी अलाउड है, वो किया जा सकता है. नेक्स्ट इज एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय हिम इज सब्जेक्ट टू द सेम लिमिटेशंस. नाउ बिकॉज इफ़ यू आर गिविंग अ प्रिविलेज टू एन ऑर्डिनेंस कि नॉर्मल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का जैसा फोर्स इफेक्ट है हम परमिट कर रहे हैं, तो जो लिमिटेशंस उस एक्ट को होंगे वो भी आपको परमिट करने पड़ेंगे ना, तो लिमिटेशंस भी आपको देने पड़ेंगे. सो दिस मीन्स दैट एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय हिम विल बी इनवैलिड टू द एक्सटेंट इट मेक्स एनी प्रोविजन विच द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक. तो लिमिटेशन में क्या आ रहा है कि वैसी जो भी चीज़ें जहाँ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर किस हद तक लॉ नहीं बना सकती, इफ़ दे हैव एनी रेस्ट्रिक्शंस, वो सब ऑर्डिनेंस के लिए भी इक्वली अप्लाई होगा. तो अगर हम प्लस दे रहे हैं तो हम लिमिटेशंस भी लगा रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ द ऑर्डिनेंस. तो द प्रेसिडेंट कैन विड्रॉ एनी टाइम द ऑर्डिनेंस एंड यहाँ पे भी गवर्नर कैन विड्रॉ एनी टाइम. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन नहीं होता है. ठीक है. तो अगर ये विड्रॉल का परमिशन है भी, तो दिस कैन ओनली बी डन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज़ हेडेड बाय PM और CM. ठीक है, इन द रिस्पेक्टिव केसेस. तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो नहीं है, जो कि आपको अगले पॉइंट में भी बताया गया है दैट दिस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज़ नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर. ठीक है. सो नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर. तो प्रोमुलगेट हो या विड्रॉ हो, ईदर केस आप लागू कर रहे हो या विड्रॉ कर रहे हो, दिस इज डन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नाउ एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय हिम शुड बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज व्हेन इट रीअसेंबल्स. सेम थिंग, लेड बिफोर व्हेन इट रीअसेंबल्स. ये आपको समझना है. अब क्या हुआ, हमारे पास अर्जेंट मैटर आया, ठीक है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है. सो व्हाट वी डिड वाज टू हैव अ सेशन, मतलब नॉट अ सेशन बट टू हैव अ सिचुएशन जहाँ पे हमें अर्जेंट मैटर को टैकल करना है, तो हम ऑर्डिनेंस लेकर के आ गए. लेकिन कभी तो पार्लियामेंट आएगी सेशन में. तो व्हेनेवर द पार्लियामेंट रीअसेंबल्स और द स्टेट लेजिस्लेचर रीअसेंबल, उसकी रीअसेंबली के बाद उसको दोनों हाउसेज के सामने रखना पड़ेगा. बोथ केसेस में ये वैलिड है. ठीक है, दोनों केसेस में इसको रखना पड़ेगा. अब क्या हो सकता है, अंडरस्टैंड द नॉर्मल सिचुएशंस. अब सेशन शुरू हुआ, लेट्स से हम पार्लियामेंट की बात करते हैं. तो आज लोकसभा बैठी, मान लीजिए टुडे, तो इसके सामने रखा गया. अब ईदर इट विल एक्सेप्ट, यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, एक हाउस से अभी हम बात कर रहे हैं. एक्सेप्ट हो गया तो भी ठीक है, दूसरे जगह पर जाएगा, दूसरे हाउस में जाएगा. रिजेक्ट हो गया तो भी दूसरे हाउस से हमको पता करना है. अब मान लीजिए राज्यसभा बैठती है, लेट्स से 2 days लेटर, डे आफ्टर टुमारो और वट एवर, लेट्स से एक्स नंबर ऑफ डेज लेटर. तो इसका एक टाइम पीरियड है. व्हाट इज़ द टाइम पीरियड, आपको यहाँ पे देखिएगा 6 weeks. अभी क्या है, अभी आई जस्ट टेल यू. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इन सच केसेस जो भी लेटर डेट ऑफ सिटिंग होगा फॉर द अदर हाउस, वहाँ से 6 हफ्ते का काम होगा. सो विद इन 6 weeks, अगर ये दोनों मान लीजिए एक ही दिन बैठी होती, दोनों में एक ही दिन सब कुछ हो गया होता, तब तो वहाँ से 6 weeks को लेंगे. 6 weeks है, मंथ नहीं है, 6 weeks को लेंगे. बट इफ़ डिफरेंट डेट्स आर देयर, सो लेटर डेट से हम लेंगे, 6 weeks का टाइम हम लेंगे. उस 6 weeks में इस ऑर्डिनेंस को एक्सेप्टेंस दोनों हाउसेस से मिल जानी चाहिए, तभी ये आगे जाके एक्ट बनेगा. नहीं होगा क्योंकि ऑर्डिनेंस इज इन द नेचर ऑफ अ टेम्प्रेरी लॉ, है ना, है लॉ ही बट टेम्प्रेरी है. तो और लॉ कहाँ से आ रहा है इसको बैकिंग, आर्टिकल 13 से.
लेकिन अगर इसको नहीं मिल रहा है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। पर ये क्या सिर्फ 6 हफ्ते बाद ही ख़त्म हो सकता है? 6 हफ्ते पहले नहीं ख़त्म हो सकता है? 6 हफ्ते के पहले नहीं ख़त्म हो सकता है? हो सकता है। नाउ विद इन दीज 6 वीक्स इफ़ बोथ द हाउसेस give a disapproval resolution. Now you know what is a resolution already, कि हम एक resolution पास कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि we are disapproving this ordinance. आपने भले 6 हफ्ते इसको चला लिया, ये चलिए जितना भी वक्त, नॉट 6 हफ्ते बट जितना भी आपने अभी तक पार्लियामेंट के सेशन में बैठने से पहले चला लिया, अब हम डिसअप्रूव कर रहे हैं। तो ये 6 हफ्ते तक रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब मैक्सिमम टाइम जो वेटिंग का होगा टू गेट इट अप्रूव्ड विल बी 6 वीक्स, and after the expiry of 6 weeks it will automatically get repealed. But it can also get repealed before 6 weeks if both the houses passes a disapproval resolution. I hope I'm making sense. Now I'll read this to you so you will also make sense better. An ordinance issued ceases to operate. तो इसकी एक्सपायरी अपने आप हो जाएगी ऑटोमेटिकली आफ्टर 6 वीक्स फ्रॉम रीअसेंबली। तो आज अगर रीअसेंबल हुआ, जो भी मैंने बोला कि लेटर डेट काउंट कर लेंगे, और उसके बाद 6 हफ्ते के अगर 6 हफ्ते तक अप्रूवल नहीं होता है तो ये अपने आप एक्सपायर कर जाएगा। बट इट कैन ऑल्सो सीज टू ऑपरेट इवन अर्लियर दैन 6 वीक्स अगर बोथ द हाउसेस पासेस रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट। द सेम थिंग गोज हियर, and for that 6 weeks I told you that later date will be calculated. Now he needs no instruction for making an ordinance. ठीक है, तो प्रेसिडेंट को किसी भी तरीके की इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, एडवाइस चाहिए ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन गवर्नर वुड, ये एक मेजर डिस्टिंक्शन है जो अभी तक आपको, बाकी सब इज़ एक्चुअली अ सिमिलैरिटी। द ओनली डिफरेंस इज कि प्रेसिडेंट के केस में पार्लियामेंट होगा और गवर्नर के केस में स्टेट लेजिस्लेचर होगा। द एक्चुअल डिस्टिंक्शन इज दिस पॉइंट ओनली, जहाँ पे ही नीड्स नो डिस्टिंक्शन इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग एन ऑर्डिनेंस, एंड यहाँ पे इनको ऑर्डिनेंस बनाने के लिए, करने के लिए प्रोमोलगेट इंस्ट्रक्शन चाहिए होंगे फ्रॉम द प्रेसिडेंट। वो 3 केसेस हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज़ ऑलरेडी गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो 3 केसेस क्या हैं, आई विल शो यू व्हेन आई रीड दैट आर्टिकल, so that we do the constitution article also, because now I have given you a broader idea of what exactly is ordinance. तो अब आपको छोटे छोटे ये सारे इन्फॉर्मेशंस ऑलरेडी पता हैं, ठीक है। चलिए मूविंग क्विकली टू द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले एक बार प्रेसिडेंट वाली चीज़ हम देख लेंगे, जल्दी से रीड करेंगे क्योंकि गवर्नर के केस में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, प्रेसिडेंट में नहीं है वो चीज़। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। नाउ इफ़ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन बोथ द हाउसेज आर इन सेशन, तो ये साफ साफ बोला जा रहा है कि सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जब ऑर्डिनेंस नहीं होगा, व्हेन बोथ द हाउसेज आर इन सेशन। सो व्हेन बोथ द हाउसेज आर नॉट इन सेशन और व्हेन ईदर ऑफ द हाउस इज नॉट इन सेशन, दोनों केस में प्रेसिडेंट को अगर सेटिस्फैक्शन है दैट द सर्कमस्टेंसेज आर देयर जहाँ पे ही नीड्स टू टेक इमीडिएट एक्शन, तो वो प्रोमलगेट कर सकते हैं, ठीक है, एज द सर्कमस्टेंसेज अपीयर टू हिम टू रिक्वायर। दिस इज व्हाट वी हैव डन। द सेम गोज फॉर गवर्नर। So you will see here this whole point is the same thing कि जब वो सेशन में नहीं है तो कर सकते हैं। बस ये है कि इसके क्लॉज 1 में वो 3 एक्स्ट्रा कंडीशंस दिए गए हैं जो कि प्रेसिडेंट के केस क्लॉज 1 में कुछ नहीं है, क्योंकि उनको कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं चाहिए। तो क्लॉज 2 आने से पहले हम गवर्नर का क्लॉज 1 देख लेते हैं। व्हाट आर दोज 3 कंडीशंस जहाँ पे विदाउट प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शन गवर्नर प्रोमलगेट नहीं कर सकते। क्या क्या है वो कंडीशन? पहला, a bill containing the same provisions would under this constitution have required the previous sanction of the president for introduction. What is it telling? It is telling कि वो जो बिल है, ठीक है, जो ऑर्डिनेंस की तरह आप पेश कर रहे हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उस मैटर से रिलेटेड ऐसा कुछ भी दिया गया है कि इट वुड हैव रिक्वायर्ड द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें प्रेसिडेंट के सैंक्शन की ज़रूरत थी, तो गवर्नर बिना प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन के वो ऑर्डिनेंस नहीं प्रोमलगेट कर सकते, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कहीं पे भी कुछ ऐसा प्रोविज़न है जो ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट के सैंक्शन की ज़रूरत थी बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ दैट बिल, तो यहाँ पे उनको मतलब इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। सेकेंड, if he would have deemed necessary to reserve a bill containing the same provision for consideration of president. अब ये पावर्स में हमने देख लिया था
कि इफ़ अ बिल रीचेस प्रेसिडेंट एंड इफ़ अ बिल रीचेस गवर्नर, व्हाट आर द ऑप्शंस दैट द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर हैज़. असेंट देंगे कि नहीं देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, कोई एक्शन नहीं लेंगे, उसको वापस भेजेंगे फॉर रिकमेंडेशन एटसेट्रा, रिकन्सिडरेशन एटसेट्रा. लेकिन गवर्नर के केस में एक एडिशन क्या हो जाता था कि गवर्नर उसको रिजर्व भी कर सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है. अगर कोई भी ऐसा बिल है जिसको कि प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करवाना है तो उनको करवाना होगा, ठीक है, तो भी उनको इंस्ट्रक्शंस चाहिए होंगे. एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विच विल हैव द सेम प्रोविजन अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन इनवैलिड. अब मान लीजिए कि जो ऑर्डिनेंस आप लाने वाले हैं अगर वो एक स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट होता, क्योंकि उसमें अगर मान लीजिए सेम प्रोविजंस होते और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन वो एक्ट को इनवैलिड माना जाता, ठीक है, हैविंग बीन रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, इट हैड रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. मतलब यहाँ पे जो डिस्टिंक्शन है वो क्या कहता है कि अगर इसको प्रेसिडेंट का असेंट नहीं मिला होता, ठीक है, कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर का प्रोविज़न है और उसको रिजर्व भी नहीं रखा गया होता तो वो इनवैलिड हो जाता अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अगर वैसा ही कोई प्रोविज़न यहाँ पर है इस ऑर्डिनेंस में तो भी वो इनवैलिड हो जाएगा. तो अगर वो सिमिलर प्रोविज़न है इन द केस कि वो अगर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा कोई बनाया हुआ एक्ट होता और वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड हो जाता, उसमें एक तो केस होता है ये एक्सेप्शन कि उसको हमने प्रेसिडेंट के रिजर्वेशन मतलब गवर्नर ने रखा हुआ है रिजर्वेशन के लिए कि आप कंसिडर करोगे तो वो तो ठीक है. बट अगर वैसा नहीं है और प्रेसिडेंट का असेंट नहीं मिलता है तो फिर तो वो इनवैलिड हो जाएगा. अब अगर इनवैलिड हो जाएगा तो स्टेट लेजिस्लेचर का भी अगर वो एक्ट इनवैलिड हो जाएगा तो वो अपने आप इस केस में मान लिया जाएगा कि वैसा ऑर्डिनेंस हैविंग द सेम प्रोविजन एज दैट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विल ऑल्सो बी इनवैलिड, कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड. ठीक है, बस यही 3 कंडीशन है जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है और बाकी इज़ द सेम. तो अब जो बाकी अगर हम देखेंगे प्रेसिडेंट का तो ये सेम ही है जो हमने पढ़ा है कि ऑर्डिनेंस प्रोमulgated अंडर दिस आर्टिकल विल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. यहाँ पे हो जाएगा सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट. ठीक है, सेम चीज़ है. बट एवरी सच ऑर्डिनेंस, अब ये सेम रिपीटेशन है, टू बी लेड बिफोर द हाउस एंड सीजेस टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 weeks. ठीक है, एंड इफ़ बिफोर द एक्सपायरेशन भी पॉसिबल है अगर आपने डिसअप्रूवल रेजोल्यूशन दोनों हाउसेस ने करा हुआ है, एंड मे बी विड्रॉन एट एनी टाइम. और ये भी साफ साफ बोल दिया गया है कि एक्सप्लेनेशन में कि अगर हाउसेस जो हैं वो रीअसेंबल डिफरेंट डेट्स पे होते हैं तो 6 weeks का पीरियड जो लेटर डेट होगा वहाँ से काउंट होगा. If and so far an ordinance under this article makes any provision which Parliament would not under this constitution be competent to enact, it shall be void. The same thing, क्योंकि हमने अगर सेम फोर्स एंड इफेक्ट दिया है तो लिमिटेशन भी दे रहे हैं कि उन्हीं मैटर्स पे कर सकते हैं जहाँ पे पार्लियामेंट को भी परमिशन होती इनैक्ट करने की, यानी उन्हीं मैटर्स पे. अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, कुछ एडिशनल मैटर्स पे कर लेंगे, मतलब एक दूसरे जुरिस्डिक्शन में घुस जाएंगे तो वॉइड हो जाएगा. सेम थिंग गोज इन द केस ऑफ गवर्नर कि लेड बिफोर बोथ हाउस 6 weeks का टाइम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सेम थिंग. और विड्रॉ हो सकता है, अगर डेट अलग होगा तो लेटर डेट काउंट होगा. और अगर ऐसा कोई भी प्रोविज़न है जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर को भी अलाउड नहीं था तो भी वो वॉइड हो जाएगा. ठीक है, बाकी ये सिर्फ इतना ही दिया गया है एडिशनल पॉइंट, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर के केस में वी नीड टू बी स्लाइटली केयरफुल कि अगर कोई इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में एंड रिलेटिंग टू द इफेक्ट ऑफ एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विच इज़ रिपग्नेंट टू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो पार्लियामेंट के ही एक्ट के साथ कॉन्ट्रडिक्टरी है या किसी एग्जिस्टिंग लॉ के साथ, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में तो आपका स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं ना, इसीलिए ये चीज़ दी गई है. देन ऑर्डिनेंस प्रोमulgated अंडर दिस आर्टिकल इन परसुएंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट, अभी जो 3 केसेस हमने इंस्ट्रक्शंस के देखे, शैल बी डीम्ड टू बी एन स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट जो कि रिजर्व रखा गया था प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, एंड बाद में उनको असेंट भी मिल गया प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, एंड बाद में उसको असेंट भी मिल गया. ठीक है, सो हियर वी एंड आवर डिस्कशन ऑन द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, एंड उसको सारे डिटेल हमने कवर कर लिए हैं. आई होप नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो एक मिसयूज़ का रिस्क हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो यही हो सकता है. इसीलिए जुडिशियल रिव्यू वाला पॉइंट ला दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो
क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन्फ्लुएंस करके ऐसा कुछ करवा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे ऑर्डिनेंस लेटेस्ट कुछ पिछले कुछ सालों में रहे हैं जो कि जिस पे सरकार को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बट उसको फिर बाद में चैलेंज किया जा सकता है कि मैलाफाइड इंटेंशंस के साथ जो है उनको लाया गया था, और अगेंस्ट जो है डेमोक्रेसी के वो उन जो लोग कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं उनको दिखता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, एक बार इससे रिलेटेड एक और केस है, तो छोटा सा बस एक केस I'll discuss with you, because whenever you will read about it in the books, गवर्नर के केस में है तो आप इसका नाम सुनेंगे, DC वाधवा। एक तो आपको कूपर केस बता दिया, ये वाला एक कूपर केस बताया अभी, ठीक है। एक तो यू हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द जुडिशियल रिव्यू वाला पॉइंट। अनदर थिंग, अनदर केस विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस इज DC वाधवा केस 1987 में। उस टाइम पे जो कॉन्टेक्स्ट था वो क्या हो रहा था कि ये देखा गया बिहार के जो गवर्नर थे, ठीक है, बिटवीन 1967 एंड 81, इस पीरियड में उन्होंने क्या किया था, बार बार ऑर्डिनेंस को रीप्रमोलगेट किया था। रीप्रमोलगेट मतलब एक ही चीज़ को बार बार ऑर्डिनेंस के ही फॉर्म में लाते जाना, उसको पार्लियामेंट के सामने रख के एक्ट बनवाना ही नहीं था, मतलब उसको हाउस के सामने रख करके वो चीज़ ही नहीं करनी थी कि क्योंकि डर रहता है ना कि हाउस से कंसेंट ही नहीं मिलेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो बार 256 ऑर्डिनेंस करे, और 1 से 14 साल के बीच में वो रीप्रमोलगेशन होता चला गया। तो अब जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप इस तरीके से सक्सेसिव रीप्रमोलगेशन करते रहेंगे, ठीक है, और इसमें सेम टेक्स्ट रहेगा, कंटेंट आपका सेम है, आप उसको बस बार बार प्रमोलगेट कर रहे हैं, और यू आर नॉट हैविंग एनी अटेम्प्ट टू गेट द बिल्स पास्ड बाय द असेंबली, है ना, तो इस केस में इट विल बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इस तरह का जो भी प्रमोलगेशन होगा उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम स्ट्राइक डाउन कर देंगे। सो इट विल बी स्ट्रक डाउन, क्योंकि यू हैव गॉट दिस एक्सेप्शनल, मतलब गवर्नर हैज़ गॉट दिस एक्सेप्शनल पावर, but you cannot use it as a substitute for the legislative power of the state. To make a law is the power of the state legislature and the parliament respectively. तो आपको अगर ये एक्सेप्शनल सिचुएशन में काम करने के लिए मिल रहा है तो वो सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशन में यूज़ होना है, इट नीड नॉट बी रिप्लेसमेंट। तो अगर आप ये करके कोशिश कर रहे हैं कि आप बार बार उसको यूज़ कर लेंगे तो हम उसको नहीं परमिट करेंगे, ठीक है। सो आई होप इतना सारा चीज़ है जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है। चलिए, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड विल कंटिन्यू विद द अदर सेशंस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।